ना पढ़े। Okay, whatever we have done till yesterday, shall we recall it? Recall कर दे हम लोग? Yes. Okay. Daria and Soumya, are you clear? Whatever I have explained till yesterday? Yes, ma'am. Yes, Sure? Yes, ma'am. Okay, so I will ask few questions. Suhani, Yes. what are the two modes of nutrition? Autotrophic and heterotropic. Okay. Soumya, what is autotrophic nutrition? Ma'am, autotrophic means plant which make their own food. Example? Plants. Very good. Daria, what is heterotrophic nutrition? The plants do not make own food. And which not plants. It is organism which do not make their own food and depends upon the plant is called heterotrophic. What are the examples of heterotrophic? Animals and Humans and animals. Okay. Now, Daria, what is stomata? Yesterday I have explained, day before in last lecture also I have explained, no Suhani? What is stomata? Daria मैंने कल भी समझाया था, उसके पहले जो लेक्चर था उसमें भी समझाया था और ये तो 6th स्टैंडर्ड में भी आता है बेटा. Pay proper attention. Suhani, tell beta what is stomata? Ma'am, stomata are the tiny holes that are present in the leaves. And what is its function? Stomata's function is to exchange the gases. Okay, very good. मैम अभी है ना सोनिया मैम ने मुझे भेजा है, तो उसमें से करना है या इस टेक्स्ट बुक में से करना है? नहीं, उसमें से ही करते हैं, फिर तेरी टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा होगा ना मैं वो करवा दूंगी. धैर्य आपको मिली है पीडीएफ? हाँ मैम मिली है. मिली है ना, मतलब आज तो उसमें से देख सकते हो ना? हाँ मैम. ओके ओके. सौम्या, व्हाट इज क्लोरोफिल? Yesterday I have explained what is chlorophyll. Suhani, tell beta what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment that is present in leaves. सौम्या, जब मैंने कल एक्सप्लेन किया था तो आपका ध्यान कहाँ था? यस्टरडे, लास्ट लेक्चर हमारा यस्टरडे ही था, मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज क्लोरोफिल. तो फिर मैम धैर्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? धैर्य, तो फिर एक्सप्लेन करने का क्या मतलब? आप लोग कुछ याद ही नहीं रखते हो एक्सप्लेन करने के बाद, तो एक्सप्लेन क्यों करना? और यस्टरडे भी मैंने लास्ट लेक्चर का रिकॉल किया था कि नहीं सुहानी? यस. एवरी टाइम ये हमने जो लास्ट लेक्चर में किया वो पहले मैं रिकॉल करवाती हूँ आपको, फिर ही आगे बढ़ती हूँ, लेकिन फिर वही के वही रह जाते हैं हम लोग.
What is the function of chlorophyll, Suhani? मैम क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो वो प्लांट्स को ग्रीन करने में हेल्प करता है। See, ये मैं explain करती हूँ. Keep in your mind now, all three of you. See, what is chlorophyll? It is a green pigment which is present in the leaves. Leaves में जो pigment होता है, it helps the leaf to capture sunlight. Okay, and when plants are making food, they capture green pigment, capture sunlight and help plants to make food. Means it is used in photosynthesis process. Okay, this energy is captured from the sunlight and it is used to produce carbon dioxide and water. Clear? धैर्य, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? मैम वो मैं जब वो पीडीएफ ओपन करता हूँ ना, तब वो कैमरा ऑफ ही हो जाता है। ओके, मैंने ग्रीन पिगमेंट एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ तो बोलो, चलो मुझे समझाओ, अपनी लैंग्वेज में समझाओ। मैम वो लीव्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोरोफिल और वो जो क्लोरोफिल मतलब जो एनर्जी देता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। सौम्या, एक्सप्लेन। मैम ग्रीन लीव्स है ना, सनलाइट को जब फूड बनाते हैं ना, तब सनलाइट को लेने के लिए और खाना बनाने इजी करने के लिए वो होता है। Where is chlorophyll present? On leaf. Chlorophyll is a green pigment present in the leaves. अब ये अच्छे से मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग अच्छे से माइंड में डाल दो। What is chlorophyll? देखो, chlorophyll is a green pigment which is present inside the leaves. उसका फंक्शन क्या है? Its function is to capture sunlight and help plant to make food, which is in the form of carbon dioxide and water. Is that clear? अब ये माइंड में डाल दो एकदम से। Yes. Okay. Now, सौम्या, आपकी पीडीएफ खुली? नो मैम, अभी तक पीडीएफ आई ही नहीं है, मम्मी ने नहीं भेजी। सुहानी और धैर्य की तो खुल गई ना? यस मैम। यस मैम। ओके, सुहानी, पेज नंबर 2 में यहाँ से रीड करो। मीन्स मैम पहले से करना है? मैम हाँ? टॉपिक बोलो ना, कौन सा है? वो सेल्स के नीचे वाला है ना, सेकेंड पेज नंबर पे। आप टेक्स्ट बुक में से कर रहे हो कि पीडीएफ में से? मैम टेक्स्ट बुक में से। हाँ तो चलो टेक्स्ट बुक में से करते हैं। कल हम कहाँ स्टॉप हुए? गार्ड सेलर, उसके बाद ना मैम कल तो हम साइप्रोपैथिक प्लांट्स पे। सेप्रोट्रॉपिक। ओके, हाँ तो फिर हम वही करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, yesterday only we have done for heterotropic nutrition. उसके टाइप्स है। How many types are there in heterotropic nutrition? Yesterday I told four. इस उसमें से we have done 2 types. Okay, from that we have done 2 types, that is parasitic plants and saprophytic plants. What are parasitic plants? Who will tell? मैम मम्मी ने पीडीएफ भेज दी, 1 मिनट।
Ma'am, parasitic plants are the plants they they want the help from the host plant. They take the help of host plants to fulfill their nutrients need. Okay. They partially or completely depend. Partially मतलब थोड़ा थोड़ा, कोई कोई न्यूट्रिशन चाहिए, और completely मतलब total nutrients चाहिए. Okay. Yes, ma'am. Examples of parasitic plant is Cascata and mistletoe. लिख दो. Come on, write. Heterotrophic plants. फिर ऐसी कॉलम बना दो. See, you can see. ऐसे 4 की कॉलम बनाओ. मैं आपको टॉपिक देती हूँ. ऊपर ऐसे लिखो हेटरोट्रोपिक प्लांट्स. Then make column of 4. फर्स्ट में लिखो पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक स्पेलिंग आती है ना. सेकंड इज हेटरोट्रोपिक प्लांट्स. मैम बाजू में ही लिखना है. ऐसे कॉलम करके. ओके. बुक में है ना सुहानी. 16 पेज नंबर पे है ना. हाँ है. बस वैसे ही लिखना है. धैर्य सौम्य आप लोग देख लो. ऐसे लिखना है. फर्स्ट पैरासिटिक, सेकंड सेप्रोफिटिक प्लांट्स, थर्ड इंसेक्टिवोरस, फोर्थ सिम्बायोटिक. धैर्य सौम्य सबके स्पेलिंग्स आते हैं ना. I write on board. आपकी पीडीएफ भेजिए ना, उसमें भी स्पेलिंग्स है. मैम डन. मैम 10 पेज की ही पीडीएफ है. हाँ. फर्स्ट चैप्टर ही भेजा है इसलिए. सौम्य बोलो तो ऑल 4 हेटरोट्रोपिक प्लांट्स बोलो तो. मैम मुझे है ना बोलना नहीं आ रहा है, और इसमें 10 पेज की है, तो आपने जो बोला ना वो नहीं है इसमें. बेटा है, आपको ढूंढना पड़ेगा. ओके. धैर्य आपने लिखा. मैम 10 पेज तक की भेजी है. Yes, ma'am. मैं लिख देती हूँ. रुको 1 मिनट. दिख रहा है आपको?
मैम आपका वीडियो ऑफ है। मैम आपका वीडियो ऑफ है। हाँ रुको रुको, यू कैन सी नाउ यस यस मैम। यस मैम। clearly. Parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants and symbiotic plants. लिख लो। मैम लिख दिया। मैम थर्ड वन क्या लिखा है? Insectivorous. मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ करती हूँ। ओके, समझ में आया? यस यस मैम। अभी ये जो पैरासिटिक प्लांट्स है वो होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है। yesterday also I explained and today also that parasitic plant is one that partially or completely depends on another plant for nutrition. Okay, लिख लो, ये डिफाइन लिख लो। parasitic plant is one that parasitic plant is one that partially or completely depends on another plant for nutrition. Example, Cuscuta, CUSCUTA. ब्रैकेट में डोडर, DODDER. मैम तो दोनों एक ही है ना? उसका दूसरा नाम है। ओके And second is mistletoe, MISTLETOE. सेकेंड का लिखो सेप्रोफेटिक प्लांट। तो सेप्रोफेटिक प्लांट is one that obtains its nutrients. मैम रिपीट करो ना। A saprophytic plant is one that obtains its nutrients from food, from dead and decaying plants. न्यूट्रिएंट के बाद Nutrients from dead and decaying plants
and animal matter. From dead and decaying plant and animal matter. अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। क्यों? सुहानी धैर्य आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा है? मैम सुनाई नहीं दे रहा है। मैम प्रॉपर आ रही है। यस मैम। ओके, एग्जाम्पल इसके है कोरल रूट्स, CORAL, कोरल रूट, और दूसरा इंडियन पाइप। मैं वो आ रही है आवाज। फंगाई, और एक एग्जाम्पल और फंगाई। अभी थर्ड लिखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मैम वेट अभी बाकी है। ओके ओके, राइट। मैम हो गया। Insectivorous plant, third. Insectivorous plants are the ones that derive, मैम जेड के बाद क्या है? derive means get, DERIVE, derive some or most that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals. मैम ड्रैपिंग मीन्स ट्रैपिंग, ट्रैप करना, खींचना, TRAPPING, ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, मेनली इंसेक्ट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना वो इंसेक्ट्स खाते हैं। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, एग्जाम्पल ड्रोसेरा। मैम इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ लिखो, ड्रोसेरा, DROSERA। ड्रोसेरा को सनड्यू भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिखो सनड्यू, SUNDEW। Then Venus flytrap, मैम स्पेलिंग Venus, 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 फिर दूसरा वर्ड FLYTRAP, ट्रैप। Then last one is symbiotic plants. Plants that live in association
Symbiotic plants लिखो. Soumya, are you writing? Okay. Plants that live in association with other organisms. Association spelling ASSOCIATION. Plants that live in association with other organisms, share food and other resources, are called symbiotic plants. Symbiotic plants. Example, lichen, LICHENS, lichen example. और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया. मैम प्लीज रिपीट ऑल. यस रिपीट करो ना. क्या रिपीट करूं, बोलो. पहले से. Plants that live in association with other organisms, share food and other resources, are called symbiotic plants. Example, lichen, LICHENS, lichen. And दूसरा is Rhizobium bacteria, RHIZOBIUM, Rhizobium bacteria. Clear? Suhani, what is saprophytic plants? Ma'am, plants that obtain the food from another plants. Dead and decaying matter of the plants. Okay. Okay, now Suhani, insectivorous plants पढ़ो page 18 पे. Insectivorous plants are the ones that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects. These plants mostly grow in places where the soil is deficient in certain nutrients. Example, nitrogen. Okay, stop. अभी देखो धैर्य, सौम्य, पे अटेंशन. ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है कि कोई कोई न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. ओके, तो दे टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. वो लोग इंसेक्ट्स ट्रैप करके खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा गया है. क्लियर? Insectivorous plants that are the one that derive some or most of their, उनका सारा न्यूट्रिएंट वो एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट में से ट्रैप करते हैं. ओके, these plants mostly grow in places where soil is deficient in, मतलब जहां नाइट्रोजन की कमी होगी ये प्लांट्स वहां ग्रो होते हैं और इंसेक्ट में से उनके न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं. ओके, ट्रैप मतलब खींच लेना. क्लियर धैर्य? तो मैम आपने कहा कि वो नाइट्रोजन कम होता है वहां पे, तो पर जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो
मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालते हैं, तो फिर वहां पे तो होगा ही ना। देखो बेटा, इसमें क्या कहा है, these plants mostly grow in places, जिस सॉइल की बात हो रही है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये प्लांट वैसी जगह ग्रो होते हैं, ऐसा बोला है इसमें बेटा। सी धैर्य सौम्य, ये पिक्चर्स देखो, दिख रहा है क्लियर? ये विनस फ्लाईट्रैप है, ये पिक्चर प्लांट है, नहीं ये सनड्यू है, ये पिक्चर प्लांट है, ये विनस फ्लाईट्रैप और ये ब्लैडर वॉट, ये चारों जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये चारों प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं। ओके, ये पीडीएफ में भी दिया है, पीडीएफ खोल के देखो तो निकालो तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वाला। मैम नहीं है उसमें। हाँ? मैम 10 पेज की है, 16 अरे पेज 5th पर है। पेज में देखो, ये रहा, देखो 5th पेज की पीडीएफ निकालो, उसमें देखो, हाँ मैम। उसमें ये टेक्स्ट बुक में एक ही एग्जांपल दिया है पिक्चर प्लांट का। हाँ, यस, इसमें पिक्चर प्लांट का ही दिया। ये पिक्चर प्लांट में क्या होता है, देखो आप लोग यहाँ पे है ना, अगर इंसेक्ट बैठता है, जैसे इंसेक्ट बैठता है ऊपर की लीड क्लोज हो जाती है और धीरे धीरे इंसेक्ट अंदर खींचा चला जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। ओके, यहाँ पे इसका स्टिकी पार्ट होता है ताकि इंसेक्ट वहां स्टिक हो जाए, फिर वो एस्केप ना हो सके और धीरे धीरे उसको अंदर खींच लेते हैं। क्लियर? यस यस मैम। धैर्य पता चला? मैम, अगर हम हमारा हाथ डाले तो अंदर घुस जाएगा। ना, फिर ये विनस फ्लाईट्रैप है, हमारा ये जो पीडीएफ में नहीं दिया है, ये के लिए रेफरेंस बुक है ना, तो इसमें दिया है, देखो दिख रहा है ना। ओके, सलोनी एक एक इंसेक्ट का पढ़ो, तो ये जो बॉक्स है ना 1 by 1 पढ़ो। धैर्य एंड सौम्य, you all pay proper attention. हाँ, the Venus flytrap has leaves modified to trap insects. The inner surface of the leaves have short tipped hair. When an insect touches the hairs, the leaves snap shut in less than a second. The insect is Then then मतलब देखो ये विनस digested. फ्लाईट्रैप है ना, उसको ये हेयर्स जैसा, पॉइंटेड हेयर्स जैसा है, जैसे बटरफ्लाई नहीं ऐसे खुलता, वैसे विनस फ्लाईट्रैप ऐसे खुलता है। यहाँ पे कहीं पे भी इंसेक्ट आ गया, वो तुरंत ही बंद हो जाता है और इंसेक्ट को अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, फिर ये सनड्यू जो प्लांट है, ये ड्रॉप्स जैसा दिखता है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो ड्रॉप्स जैसा, धैर्य कैन यू एंड सौम्य सी? मैम, ये जेली होती है। हाँ, मतलब वो एकदम स्टिकी स्टिकी होता है, तो whenever insect sits on it, it traps the insect, insect stick हो जाता है। वो पढ़ो तो सुहानी। हाँ, the leaves of the sundew plants have long, thin structure called tentacles, which have drop of a sticky substance called म्यूसिलेज, ये जो mucilage. सब्सटेंस है ना सुहानी, उसको म्यूसिलेज कहते हैं। ओके, Called mucilage at their ends. Once an insect touches the tentacles, it gets stuck in the mucilage and is unable to escape. Uh, it is it it is then digested. वो स्टिक हो जाता है, फिर वो एस्केप नहीं कर सकता, स्लोली स्लोली इट इज बीन डाइजेस्टेड। ये ब्लैडर वॉट पढ़ो।
a slender leaves of bladderworts bear a large number of very small pear-shaped bladder structure which acts like trapdoors and suck in small ट्रैपडोर्स मतलब उसको खींच लेना. insects in less than a second. Got it? ये चारों आपको पता चल गया. वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू एंड ब्लैडरवॉर्ट. ओके. मैम पर ये तो ऐसे राउंड है तो वो कैसे ट्रैप करेगा? लीव्स ऑफ ब्लैडरवॉर्ट. देखो ये जो लीव्स है ना, ये देखो ये बीच में दिख रही है. हाँ, तो मार्क पे ट्रैप करेगा. ओपनिंग होता ही है, जैसे इंसेक्ट अंदर जाए वो ओपनिंग क्लोज कर देता है. मैम पर ये जो लीव्स है वो कैसे खुले रह सकता है? वो खुले नहीं रहते, मतलब सी दीज आर सर्टन पैटर्न. जैसे कि इसमें देखो हर एक चीज में ओपनिंग है. ये वीनस फ्लाई ट्रैप का ये ओपनिंग है, ये पिक्चर प्लांट का ओपनिंग है, ये सनड्यू में स्टिकी सब्सटेंस होते हैं. तो वैसे भी हियर इट इज पैटर्न वे ओपन हो जाती है जब इंसेक्ट आए, फिर क्लोज हो जाते हैं. स्टिकी होता है इसलिए स्टिक हो जाता है. क्लियर? Daria, why your video is off? So you all are clear with this four insectivorous plants? Yes, Daria, Soumya, समझ में आया बेटा? Okay, Suhani, now read symbiotic plants. Yes. Symbiotic plants. Certain plants live in association with their organism, share food and other resources. Both the type mutually gain from each other. Such plants are called symbiotic plants, and the relationship is called symbiosis. अभी देखो ये सिम्बायोटिक में प्लांट में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दोनों पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ओके. जैसे कि एक फूड और शेल्टर देता है, फूड एंड वाटर देता है, तो दूसरा शेल्टर देता है. वैसे दोनों एक दूसरे को हेल्प करके प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसी जो रिलेशनशिप फॉलो करता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा गया है. धैर्य सौम्य, ये जो पीडीएफ भेजी ना उसमें पेज नंबर 7 पे देखो. पेज नंबर 7 पे ये पैराग्राफ रीड करो तो सौम्य. Some organism live together से सेकंड पैराग्राफ रीड करो पेज 7. ओके मैम. Some organism live together, वहां से. हाँ वहां से, वहां पे ये सिम्बायोटिक का सब दिया है, इसीलिए आपको वहां से पढ़ने को बोला. यस मैम. चेकिंग योर पीडीएफ लेसन पेज 7 सेकंड पैराग्राफ. सौम्या इज रीडिंग. मैम स्टार्ट. यस. Some organisms live together and share the shelter and nutrients. This relationship is called symbiotic. For example, certain fungi live inside the roots of the plant. The plant provides nutrients to the fungus, and in return, the fungus provide water and certain nutrient. Stop. धैर्य, आपने सुना? यस मैम. ओके. नाउ इसमें क्या कहा गया है? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. Okay? Yes, सौम्य बोलो. मैम न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर सब शेयर करेंगे तो उन लोग के पास खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं होगा. कैसे होगा? वो तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं ना. जैसे देखो
इंसेक्ट्स नेक्टर सब करता है तो खत्म ना हो जाए, लेकिन प्लांट्स तो नेक्टर प्रोड्यूस करता ही रहता है ना, वैसे। So some organisms live together and share both shelter and nutrients. These relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of the plant. Fungi जो है roots of the plant में रहती है. The plants provide nutrients to the fungi. Fungi जो plant में रहता है तो plants उसको nutrients देते हैं. Okay, और plants provide nutrients to the fungus. In return, fungus उसको पानी और nutrients देता है. Okay, जो plant में नहीं होता. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है लीचन प्लांट. देखो ये दूसरी बुक है ना, उसमें लीचन का ये पिक्चर दिया है. धैर्य देखो, दिख रहा है धैर्य? यस मैम. सौम्या, Yes, ma'am. Suhani, read this paragraph of lichen. Lichens are symbiotic association between a fungus and microscopic chlorophyll containing organism. Green algae, the algae provides nutrients to the fungus, and the fungus help the algae to grow in harsh conditions and places where they would otherwise not survive. Okay, सौम्या, उसके नीचे वाला पैराग्राफ रीड करो. Read. Ma'am, in organisms called leeches, a chlorophyll containing partner वो वाला. हाँ वो वाला बेटा. In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is a and a fungus. What, ma'am? Which is an algae and a fungus. Algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provide food to the fungus. मतलब देखो, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचन, जैसे मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एल्गे. लीचन का पार्टनर कौन है? एल्गे एंड फंगस. क्लोरोफिल विच इज एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर. एल्गे और फंगस साथ में रहते. व्हाट इज एल्गे, यू नो? सुहानी, धैर्य, आपको पता है एल्गे मतलब? सी means it is the partner. सी पॉन्ड या लेक में ग्रीन कलर का ऊपर नहीं जम जाता, लील बोलते हैं हम लोग गुजराती में. हाँ हाँ. दैट इज एल्गे. तो हम उसको लील भी नहीं कह सकते? नहीं, इंग्लिश में उसको एल्गे कहते हैं. ओके ओके, तो द फंगस मैम कई पेड़ों में भी एल्गे होता है ना? हाँ होता है. इट ग्रोज इन डेड एंड डिकेइंग मैटर. एल्गे आल्सो फंगी की तरह डेड और डिकेइंग मैटर में ग्रो होता है. तो दोनों एक दूसरे को शेल्टर देते थे. जैसे फंगस शेल्टर और पानी देता है तो एल्गे उसको फूड बना के देता है. ओके, फूड बना सकता है क्योंकि एल्गे ऑटोट्रॉप है. एल्गे ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, इसीलिए वो देखो पॉन्ड या लेक में पहले थोड़ा होता है, धीरे धीरे हम लोग एक वीक के बाद जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है. होता है ना. तो दैट इज बिकॉज इट मेक्स इट्स ओन फूड. इट इज ऑटोट्रॉप, राइट? यस. How nutrients are replenished in the soil. Daria, read. Yes, ma'am. Have you seen farmers spreading manure of fertilizer in the fields, or gardener using them in loaves or in pots? Do you know
why this is done, you learn that plants absorb millions and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, uh, uh, Phosphorus. phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if you can fulfill the nutrients requirement for plants. Stop. Now देखो इसमें क्या किया कहा है, how nutrients are replenished in the soil. What is the meaning of replenished? Replenished मतलब फिर से उसमें nutrients डालना. हमने देखो जैसे फार्मर ने क्रॉप ग्रो किया, फिर क्रॉप पूरा ग्रो हो गया, उसको काट लिया, हार्वेस्ट कर दिया, फिर वहां पे अगर दूसरा क्रॉप उसको ग्रो करना है तो पहले सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसमें जो फर्टिलाइजर मैन्योर नहीं है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा क्रॉप ग्रो हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. ओके, जैसे घर में फॉर एग्जांपल मम्मी रोटी बनाने का आटा होता है, खत्म हो जाता है तो फिर से दूसरा आटा ले आती है ताकि हम लोग वो अच्छे से खाना बना सके, रोटी पराठा जो भी बनाना है, तो वो उसने फिर से दूसरा आटा भर दिया डब्बे का, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. गॉट इट? मतलब एक की एक जब खत्म हो जाए तब दोबारा करना, उसे रिप्लेनिश. तो दैट इज रिप्लेनिश. ओके, नाउ इसमें सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब, प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से. ओके, नीचे हम लोग पानी डालते हैं प्लांट्स में तो ऑलवेज नीचे ही डालते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे लीव्स में या फ्लावर्स में डालते हैं, ऐसे डालते हैं. ऑलवेज वी गिव वाटर टू द सॉइल wherever the plants are grown, right? So plants को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से मिलेगा. So their amount in soil keep on declining. Declining मतलब कम होता जाएगा. बार बार हम एक चीज यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी. ओके, सो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. ये आपको कल मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. Enrich मतलब सॉइल को फिर से प्रॉपर बनाने के लिए ताकि वो क्रॉप्स अच्छे ग्रो कर सके. Manures means मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर जो होता है, मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे काउडंग होता है वो मैन्योर है. ओके, नाउ वी कैन ग्रो एंड कीप द हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द. अभी सॉइल को हम हेल्दी रखेंगे मतलब सॉइल को अच्छे से रिप्लेनिश करके रखेंगे, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो प्लांट्स अच्छे ग्रो करेगी ना. ओके, गॉट इट? We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plants. मैम आपने जो सिम्बायोटिक प्लांट्स में जो एग्जांपल में लिखा है ना, लीचेंस एंड राइजोबियम, वो नहीं है मेरी टेक्स्ट बुक में. ये रहा बेटा. पर मैम ये सिर्फ लीचेंस है जो ट्री पे होता है ना. ये जैसा ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये सॉइल में होता है. ये सॉइल को नाइट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके ओके, राइजोबियम रूट्स ऑफ प्लांट सच एज पी. पी मतलब जो हम बटाना नहीं खाते ग्रीन कलर का. यस मैम. Are called rhizobium. Rhizobium converts atmospheric nitrogen into usable forms. The plant in turn provide nutrients for the bacteria growth. ये आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. ओके,
अभी आपका दूसरा लेक्चर होगा ना? Yes, Okay. ma'am. Maths का. बाय बाय। Bye. Bye, ma'am.
सौम्य जोशी, Yes, ma'am. you are from which school, beta? HB Kapadia. Okay. Dhairya, you are from Turf, right? Yes, ma'am. And Suhani, Yes, ma'am. you are having a different book, na beta? Yes, ma'am. Oxford Landmark. हाँ, तो आपने बात नहीं किया था एडमिन ऑफिस में? नहीं मैम, आपने बोला था ना कि कॉल आएगा, पर आया नहीं था। ऐसा है, ठीक है, आज आप बात कर लेना ना बेटा, मैं वापस रिमाइंड तो करवाऊंगी। क्या हुआ मैम? परीक्षा मैम? Okay. हाँ, अभी ये सुहानी मोदी जो है, शी इज अ सीबीएसई स्टूडेंट मैम, शी इज नॉट फ्रॉम गुजरात बोर्ड। हाँ, उसकी लैंडमार्क बुक है, एसएस की लैंडमार्क एडिशन। मैम मेरी गुजरात बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड है मेरा। तो एसएसटी आपकी लैंडमार्क है ना? यस मैम। तो एसएससी कौन सी बुक है उसकी? ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड की? ओके, तो वो फिर कैसे करेंगे मैम? वो ही है। एसएससी ऑक्सफोर्ड की है ऐसा? हाँ, वो ऐसा बोल रही है, अगर वो उसको सभी गुजरात बोर्ड है तो एसएस भी गुजरात बोर्ड ही होना चाहिए। हाँ हाँ मैम, सभी टेक्स्ट बुक ऑक्सफोर्ड की है। अब देख सुहानी, ओके, यानी कि उसकी स्कूल गुजरात बोर्ड है पर उनको एडिशन ऑक्सफोर्ड करवा रहे हैं, पता चला मैम? हाँ, यस यस। हाँ, तो ये तो ना प्योर सीबीएसई बैच में भी देखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी तो ये तो टोटली गुजरात बोर्ड है मैम। बुक्स गुजरात बोर्ड की है, स्कूल गुजरात बोर्ड है, और बुक्स ऑक्सफोर्ड की है। ये सारी बुक्स उसकी लैंडमार्क है, ऑक्सफोर्ड लैंडमार्क। ऑक्सफोर्ड। ओके, मैं बात करती हूँ सर से। ठीक है ना? हाँ। आप तो ये 7 गुजरात बोर्ड में कौन सा चैप्टर कराने वाले? The first chapter I'm going to do today, the Rajput age. ओके मैम। 2 big states यानी कि। टू बी स्टेट। ठीक है? ओके। हाँ, वो चैप्टर चलेगा। Ma'am, I don't have आप book. मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए मैम। मैं कोई बात नहीं बेटा। मैं होस्ट नहीं हूँ मैम। अच्छा, आप होस्ट नहीं हो ना, साक्षी मैम को बोलना पड़ेगा। मानसी मैम है। कोई नहीं, चलो। ओके। ये सौम्या, धैर्य प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा, सुहानी ऑन योर मैम। वीडियो। मैम पर फर्स्ट चैप्टर तो एसएस में हु, व्हेन एंड हाउ है ना? बेटा वो सुहानी आपकी बुक का अलग है। मैम बस 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ नेटवर्क इशू है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सुहानी ओके मैम पर पहले मैंने जो किया था उसमें तो ये फर्स्ट चैप्टर यही था। हमको पता तो चला हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वही है, तो बात कर वो रही आपका चैप्टर नहीं है ना? हूँ कौन है भाई कि ये? आपकी जो बुक है वो सुहानी, यस मैम। आपकी स्कूल कौन सी है बेटा? अपोलो इंटरनेशनल स्कूल। ओके। तो प्रेक्षा मैम आज इसको लीव कर दे क्या? प्रेक्षा मैम। सुहानी देखो, अगर आज आपका वो चैप्टर ना हो जो चल रहा हो तो आप लीव कर देना, आज मैं सर से बात करती हूँ, ठीक है? ओके मैम, पर जब मैंने पटेल, पहले क्लास ज्वाइन किया था ना, भारती तब राजपूत, देवांशी शाह। क्या बोल रहे हो? हाँ, उसको कोई भी रिलेटेड नहीं।
ओके सुहानी, यस मैम। हो गया बेटा बात? नहीं मैम। कोई नहीं, मैं अभी जो चैप्टर समझा रही हूँ, ठीक है, अगर उसमें से कुछ भी आपको नहीं है तो आप देख लो, आपको लीव होना है या जो, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है। ओके, धैर्य ऑन योर वीडियो बेटा। Yes, ma'am. Two big states we are going to study today, the first chapter of your semester 1 book. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमने 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, अर्ली ह्यूमन एज के बारे में पढ़ा था, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि पहले जब लोग हंटर और गैदरर थे, फिर थोड़े थोड़े से राजा किंगडम यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। हम 7th की हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे राजपूत राजा, राजपूत डायनेस्टी कैसे रूल कर रही थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इसके बारे में सुना है ना, सब फेमस किंग के बारे में, राइट। फिर यहाँ पे राजपूत रूल कर रहे थे, हम सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, मोगल के बारे में पढ़ेंगे। यानी 7th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग राजा की यहाँ पे डायनेस्टीज थी जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। सबसे हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। हिस्ट्री कैसे डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एंशियंट, तो हमने पढ़ लिया एंशियंट के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब लोग हंटर और गैदरर थे। सेकेंड पार्ट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री डिवाइड है मेडिवल हिस्ट्री, जो हम 7th में पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री यानी कि हम इस पीरियड में राजपूत, मोगल, सुल्तान। अब इस मेडिवल में 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड। जब अर्ली मेडिवल पीरियड की बात होती है तो वो 8th to 12th की बात होती है, 8th सेंचुरी to 12th सेंचुरी, यानी राजपूत यहाँ पे रूल करते थे। लेट मेडिवल की बात करेंगे तो जब सल्तन यहाँ से बाहर से, अफगान से, पर्शिया से लोग यहाँ पे आए, ठीक है। और थर्ड जो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है वो है मॉडर्न पीरियड, यानी कि मुगल जब यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा था और ब्रिटिश यहाँ पे आ गए थे, जो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरे 7th में हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में। कौन सा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम? मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडल हिस्ट्री इन विच देयर वाज Rajput rulers, there were Sultanate rulers, there were Mughal rulers. And in standard 8, we are going to study how there was a decline of Mughal, how British came in India and how 200 years they ruled us. और पूरे 8th के एंड में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको निकाला, ठीक है। और पूरे 7th में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री दूसरे डायनेस्टीज के बारे में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि 8th to 12th सेंचुरी के बारे में। इस सेंचुरी में 2 बड़े स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। दोनों ही स्टेट में बहुत ही करेजियस और ब्रेव रूलर्स रूल कर रहे थे। जो नॉर्थ में थे वो थे राजा हर्षवर्धन, और जो साउथ में थे वो थे राजा पुलकेशी II। तो पहले हम नॉर्थ पार्ट का पढ़ेंगे, हर्षवर्धना के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे साउथ के बारे में। ओके, क्लियर एवरीवन? सौम्य, आपके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा? धैर्य, आपके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है? No, ma'am. वेट फॉर अ सेकेंड। मैम ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है मेरी टेक्स्ट बुक में। बेटा ये गुजरात बोर्ड है, मैं वही बोल रही हूँ ना आपको। तो मैम अगर अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर एसएस का है तो मुझे किस में ज्वाइन करना है? आपको कॉल करेंगे, अभी मैम ने बात किया ना। हाँ मैम, पर बच्चे लोग, पहले तो आप ही आए थे ना पढ़ाने। you can continue the session. ओके साक्षी मैम। अच्छा, अभी वेट, आई एम ट्राइंग कि मेरे पास पीडीएफ आ जाए।
ओके 5 मिनट दो, मैं डाउनलोड करी, हो गया। साक्षी मैम, यस मैम। आप मुझे होस्ट बना। धैर्य एंड सौम्य, दोनों को दिख रहा है बेटा? यस मैम। Yes, ठीक है ना? ma'am. ओके चलो, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड बेटा प्लीज ट्राई टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। आप लोग ये उस गूगल में सर्च करना, डाउनलोड पीडीएफ स्टैंडर्ड क्लास 7 इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड एसएस टेक्स्ट बुक, ठीक है? तो ये डाउनलोड कर देना, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है ना बेटा? Okay, now see, we are going to study about, as I told you, two big states. The first which we are doing is the Kannauj, that is in the north. ये जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। अब जब नॉर्थ इंडिया में है, उसमें जो राजा थे वो राजा रूल करते थे हर्षवर्धन। क्या है राजा का नाम? हर्षवर्धन। और ये जो राजा है उनके जो कैपिटल का नाम है, वो कैपिटल का नाम है कन्नौज। ये सबसे बड़ी उस वक्त की बिग स्टेट थी, इसलिए उसको कन्नौज, राइट, कैपिटल कन्नौज। धैर्य समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ किंग हर्षवर्धन वो कौन से ईयर में बॉर्न हुआ था? 606। उसकी फादर का नाम था प्रभाकर वर्धना। हर्षवर्धन का जो एल्डर ब्रदर था उसका नाम था राज्यवर्धन, राइट। राज्यवर्धन ने राजा बना था कौन से किंगडम का? थानेश्वर। राजवर्धन ascended the throne of थानेश्वर. राजवर्धन was killed by king or god शशांक। गॉड किंगडम का जो राजा था जिसका नाम शशांक था, उसने राजवर्धन को मार डाला था। हर्षवर्धन की बहन थी जिसका नाम था राजेश्वरी, उसको जेल में डाल दिया था देवगुप्त के राजा ने, किंग मालवा, ठीक है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में हर्षवर्धन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थानेश्वर की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? थानेश्वर की। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ अगेन, देन धैर्य यू हैव टू रीड एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन। किंग हर्षवर्धन कौन से साल में बॉर्न हुआ था? 606 सीई। उसकी फादर का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धना। उनकी डेथ के बाद हर्षवर्धन के जो एल्डर ब्रदर थे, उनके जो बड़े भाई थे, उसका नाम था राज्यवर्धन, वो राजा बने थानेश्वर के। पर राज्यवर्धन को मार डाला, किल्ड बाय किंग ऑफ गॉड। किंग ऑफ गॉड, गॉड जो है वो किंगडम है और राजा का नाम है शशांक। उनकी जो बहन थी राजेश्वरी, उसको जेल में डाल दिया देवगुप्त राजा ने, किंग ऑफ मालवा। मालवा जो है किंगडम का नाम है, राजा का नाम देवगुप्त है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले। क्लियर टिल नाउ? धैर्य, रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. King Harshvardhan
was born in 606 CE after the death of his father Prabhakvardhan. Harshvardhan's eldest brother Rajvardhan ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajvardhan was killed by King of God Shashank. Their Shashank. their sister Rajeshri was imprisoned by the king of Malwa Devgupta under these Circumstances and advised by the leaders of the kingdom. Harshvardhan should the responsibility of Thaneshwar, present Punjab, Haryana. थानेश्वर अब प्रेजेंट क्या बोला जाता है? पंजाब हरियाणा. ओके, चलो सौम्या, हम कौन से राजा की बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन. ओके, धैर्य, नेम द फादर ऑफ हर्षवर्धन. Prabhakar Vardhana. Yes. Soumya, in which year was Harshvardhana born? 606 CE. Very good. Dhairya, name the elder brother of Harshvardhana. Rajvardhanam. Okay. Soumya, who killed Rajvardhana? The kings of God. What is the name of the king? Shashank. Shashank. Okay. Dhairya, who imprisoned Rajeshri? The king of Malwa. The king of Malwa, but name the king? Devgupta. Yes. Right. And under all these circumstances, which kingdom responsibility came under Harshvardhana, Soumya? Finally, Harshvardhan किसका राजा बना? थानेश्वर. किसके राजा बने? थानेश्वर. क्लियर हो यहाँ तक? क्लियर? चलो. आप लोग दोनों को इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है इस पैराग्राफ की, क्योंकि आज मैं होमवर्क दूंगी. ठीक है? स्क्रीनशॉट ले पाओगे ना दोनों? मैम ले ली. हाँ, नीचे भी मैं कर रही हूँ. पहले इतना ले लो, फिर नीचे वापस कर रही हूँ. डन? मैम ले ली. ये पार्ट भी ले लो. मैम ले ली. ओके, चलो. तो मैं होमवर्क दूंगी तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो. नाउ वी विल डू द सेकेंड पैराग्राफ. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister. जब वो थानेश्वर के राजा बने तो immediately उसने सबसे पहले क्या सोचा कि वो उसकी बहन को देवगुप्त, जो राजा ने उसको जेल में डाला है, वहां से उसको छुड़वाऊंगा. मीनवाइल जो उसकी बहन थी राजेश्री, वो देवगुप्त के क्लचेस यानी उसके चंगुल से भाग गई और वो फॉरेस्ट में भागी, और वो फॉरेस्ट का नाम था विंध्या फॉरेस्ट. विंध्या फॉरेस्ट की तरफ वो भाग गई. राइट. और जब हर्षवर्धना को पता चला कि उसकी बहन विंध्या फॉरेस्ट में भाग गई है, तो वो उसको ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में गया और वहां के लोगों की मदद ली. और फॉरेस्ट में एक बुद्धिस्ट हर्मिट इज व्हाट? संत, साधु, जिसका नाम था दिवाकर मित्र. बुद्धिस्ट हर्मिट का नाम क्या था? दिवाकर मित्र. ठीक है. उस दिवाकर मित्र ने उसकी बहन को सती कमिट कर रही थी, वो सती कर रही थी, उससे स्टॉप किया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती? परेशान करना. नहीं. क्या हुआ? उसकी बहन विंध्या फॉरेस्ट के तरफ गई, हर्षवर्धना को पता चला, वहां के फॉरेस्ट के लोगों के मदद से और बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्र के मदद से उसकी बहन जो सती सिस्टम फॉलो कर रही थी, उससे उसने रोका. सती सिस्टम क्या होता है कि पहले के जमाने में जब
हस्बैंड मर जाता था तो उसी की चिता पर, राइट, जो वाइफ होती थी वो खुद जल जाती थी, जिंदा जल जाना। ठीक है, अब हमने देखा कि देवगुप्त ने राजेश्री को पकड़ लिया है। देवगुप्त ने राजेश्री को कब पकड़ा? जब उसने पहले उसके हस्बैंड को मार डाला, उसके किंगडम को उसने कैप्चर कर दिया और राजेश्री को पकड़ के अपने पास ले गया। तो राजेश्री को पता था कि मेरा हस्बैंड तो मर गया है, ठीक है, मेरा जो किंगडम है वो देवगुप्त ने ले लिया है, तो वो अपने आप को जिंदा जलाने वाली थी। अपने आप को वो क्या करने वाली थी? जिंदा जलाने वाली। तो वो उसको बोलते हैं कमिटिंग सती। ठीक है, तो हर्षवर्धना ने बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्र के हेल्प से उसको रोका और उसको बचा दिया। अब राजेश्री का किंगडम कौन सा दिया है? कनौज। तो उसका किंगडम कौन सा था? कनौज। इसमें कोई भी राजा नहीं रहा। हर्षवर्धन ने क्या किया? पहले देवगुप्त को हराया और कनौज को ले लिया। हर्षवर्धन कनौज का रूलर बना, देवगुप्त को हराया, मालवा का रूलर बना। तो अब वो 3 किंगडम का राजा बना। उसका इसके भाई के मरने के बाद थानेश्वर, उसकी बहन का किंगडम कनौज और देवगुप्त को हरा के मालवा। क्लियर? सौम्या ये पैराग्राफ पढ़ो। Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajeshwari. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of the Devgupta and ran away into the Vidya forest. He went in search for his sister, and with the help of people living in the forest and Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. Since Rajeshwari kingdom, Kannauj, Uttar Pradesh was without any king at the time. Harshvardhan became its ruler. Later, he defeated Devgupta, the king of Malwa. Wait, बस क्लियर? चलो, धैर्य ऑन योर वीडियो। आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है बेटा, वीडियो ऑफ नहीं करना। धैर्य आंसर करो। चलो, with name the Buddhist hermit who helped Harshvardhana. Ma'am, what is the question? दिवाकर मित्र, बुद्धिस्ट हर्मिट जिसने हर्षवर्धना को हेल्प किया था उसका नाम बताना था, तो उसका नाम है दिवाकर मित्र। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धना कौन से 2 किंगडम के राजा बने? 2 किंगडम का नाम दो सौम्या। कनौज एंड मालवा। कनौज एंड मालवा। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ। अब उसको क्या करना था? उसकी बहन को तो उसने बचा दिया, अब उसको रिवेंज लेना था जिसने उसके भाई को मारा था, शशांक राजा को। तो उसने प्रिपरेशन शुरू किया कि वो गॉड किंग शशांक को हराएगा, डिफीट करेगा, उसको मारेगा। और उसने मदद ली किंग ऑफ कामरूप, और वो कामरूप के राजा का नाम था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन की मदद से उसने अटैक किया शशांक के किंगडम पे और उसका किंगडम भी उसने कॉन्कर कर दिया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले थानेश्वर मिला, उसके बाद कनौज मिला, उसके बाद मालवा मिला। अब शशांक के किंगडम को हरा के
गॉड किंगडम भी उसको मिल गया, ठीक है, और उसने मालवा भी कॉन्कर कर दिया था, ठीक है। पर वो जब साउथ के तरफ आया, जो पुलकेशी II वहां पे रूल कर रहा था, और वो पुलकेशी II था चालुक्य डायनेस्टी का राजा, पर वो उसको हरा नहीं पाया, और वो उसका नॉर्थ तक ही उसकी किंगडम रही, वो साउथ तक नहीं पहुंच पाया। ओके, धैर्य रीड दिस पैराग्राफ as part of his preparation set. Yes, ma'am. Harshvardhan personally No beta, you have to read this part from here. As part of his preparation to launch an attack and Sasnak, the god king formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, Bhaskaravam, Bhaskar Varman, with the help of a large army. He defeated the god king and won over a major part of kingdom. He also conquered Malwa and Sarustra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi, king of Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victories, Thaneswar emerged as a large kingdom in North India. Okay, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा किंगडम था थानेश्वर। 7 बार उसने सभी किंगडम को उसने जीता, सिर्फ चालुक्य डायनेस्टी वो नहीं जीत पाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किंग हर्षवर्धना कब बॉर्न हुआ, हर्षवर्धना के फादर, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, प्लीज आप नोट डाउन करते जाओ क्वेश्चंस, नोट डाउन द क्वेश्चंस, फिर ये स्क्रीनशॉट के हेल्प से आप उसको कर देना, ठीक है। The first question, in which year was Harshvardhana born? In which year? In which year was Harshvardhana born? Second question, name the father of Harshvardhana. Third question, name the brother and sister of Harshvardhana. And 1 second, ma'am. हाँ, ओके, शांति से लिखो। Now, question 4. Who killed Rajvardhan?
Who imprisoned Rajeshri? Imprisoned. Imprisoned. स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिखेगा है मैम इसमें स्पेलिंग? हाँ दिखाती हूँ, ये रहा, दिखा? यस मैम। RISONED who imprisoned the Rajeshri. Rajeshri. फिर लिखो who helped Harshvardhana? Helped Harshvardhana in liberating Rajeshri. Who helped Harshvardhana in Liberating, LIBERATING, liberating Rajeshri. मैम कहाँ पे है इसमें? इसमें नहीं है, मैम धीरे धीरे फेस एक बार बोले ना। LIBERATING। धैर्य तुम लिख रहे हो ना? यस मैम। मैम लिबरेटिंग के बाद में राजेश्री। फिर लिखो who was the king of Malwa? Who was the king of Malwa? Who defeated him? Was the king of Malwa? Who defeated him? मैम 7th में है ना who defeated him? 7 में ही है। फिर लिखो who helped Harshvardhana? Who helped Harshvardhana? Who helped Harshvardhana in defeating King Shashank? Shashank, King Shashank. ओके, इसी पैराग्राफ में सारे आंसर है। आधे तो मिल गए होंगे ना आंसर्स? यस मैम। चलो अब ये नीचे वाला पैराग्राफ करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चंस आपको इसमें से दूंगी। तो ये जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें से आपको होमवर्क करना है। ओके, अब जो हर्षवर्धना राजा बना था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धना, ये जो REIGN है ये वाला, तेरे इसे क्या बोलेंगे हम? रीजन नहीं, इसे रीजन नहीं बोलते हैं, इसे रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन, यानी कि किंगडम, डायनेस्टी, पर उसको हम रेन बोलते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धना's रेन यानी हर्षवर्धन के समय पे, हर्षवर्धन के किंगडम पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे रन करता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज्ड, वो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पर्सनली सुपरवाइज करता था और वो हर एक स्टेट में खुद जाके ट्रैवल करता था। उसने जो उसका डेली रूटीन था, दिनचर्या जो हम बोलते हैं, डेली रूटीन यानी दिनचर्या, उसको 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया था। सबसे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव
पे ध्यान रखता था। दूसरा जो पार्ट था वो लोगों को मदद करने में, पब्लिक वेलफेयर, या उसके किंगडम में पानी की प्रॉब्लम है, क्रॉप्स की प्रॉब्लम हो, तो वो पब्लिक वेलफेयर हो। और जो थर्ड था वो रिलीजियस एक्टिविटी यानी धर्म, ठीक है, वो था रिलीजियस एक्टिविटी यानी रिलेटेड टू गॉड, रिलीजन। He was so diligent in carrying out. वो इतना डेलिकेंट था, यानी डेलिकेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अपने काम में लीन हो जाना, खो जाना, इतना वो डूब जाता था अपने काम में कि वो काम करते करते वो उसका खाना भी भूल जाता था, उस दिन का वो खाना भी भूल जाता। देखो यहाँ पे दिया, he even forget to have his meal। इतने उसके काम में वो खो जाता था, इतना डेडिकेटेड था कि वो उसका खाना भी भूल जाता था। ठीक है, सौम्य, रीड दिस पैराग्राफ। Yes, ma'am. Harshvardhana personally supervised the administration of his state by traveling expensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was of administration purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at a time he even forgot to have his meal. ओके, धैर्य। चलो अब मैं इसमें से आपको पहले क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप मुझे आंसर देना, फिर जो लिखना है वो मैं आपको बोलूंगी। धैर्य, चलो पहले मुझे बोलो, हर्षवर्धना ने उसकी डेली रूटीन कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट। 3 पार्ट्स, ठीक है। सौम्य, कौन कौन से 3 पार्ट थे बताओ? The first was for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. वेरी गुड, ठीक है। इसमें से तो ये एक ही क्वेश्चन है, चलो लिख भी दो। What we have to write, ma'am? How did Harshvardhana divide his routine? How did Harshvardhana divide his routine? तो आपको लिखना है इन 3 पार्ट, और सौम्य जो आपने आंसर दिया वो, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ मैं वापस क्वेश्चन, हाउ डिड हर्षवर्धना डिवाइड हिज रूटीन? How Harshvardhana divide his... चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? आप दोनों में से किसी को? नो मैम। No, ma'am. समझ में आया अच्छे तरीके से? Yes, ma'am. अच्छा, अभी देखो मैंने ना सर्च किया था गुजरात बोर्ड क्लास 7 टेक्स्ट बुक PDF, ठीक है। तो आज आप ट्राई करना आपके डिवाइस में, है ना, तो आपके पास कोई डिवाइस में PDF होगी तो आपके लिए इजी होगा। मैं स्क्रीन शेयर तो कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है, पर आप हर बार वो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। समझ में आया? आपके पास PDF होगी तो जब मैं वर्कशीट भी आपको दूंगी तो आपके पास पूरा चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, this is the 6th page, okay। In this
you have to take screen share of this part. ये things to know दिख रहा है आपको? यस मैम। उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको लिखना है, मैं आपको इतना समझा देती हूँ। ये जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव 3 पार्ट उसका डेली रूटीन का जो डिवाइड हुआ था, उसमें जो फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो था ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हेल्प करने के लिए उसके जो मिनिस्टर्स और उसके साथीदार थे उसके नाम दिए, पोस्ट दिया। जैसे हर्षवर्धना के पास कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी थी, प्रतिहारा यानी द्वारपाल। फिर उसके पास था संधि विग्रह का, यानी फॉरेन मिनिस्टर था उसके पास। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, संधि विग्रह का, फॉरेन, राइट? Yes, ma'am. फिर है राजदूत। फिर क्या है? राजदूत दिख रहा है आपको? वो था उसका एम्बेसडर। ओके, Yes, ma'am. फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट की स्क्रीनशॉट में नहीं आया है। राजया यस, मंत्री, दैट इज महादंडाया का चीफ जस्टिस, और अक्षर पटली का रजिस्टर। तो ये आपको लिखना है। Yes. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ये थिंग्स टू नो आपको लिखना है। फिर इसमें से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जो मैं वर्कशीट जब दूंगी तब ये इसमें से क्वेश्चन होगा। जैसे कि संधि विग्रह का कौन था? अगर आपको क्वेश्चन पूछे हु वाज संधि विग्रह का, तो आपको आंसर देना है फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है? प्रतिहारा, व्हाट हु वाज प्रतिहारा, तो द्वारपाल। समझ में आया? फिर होगा हु वाज एम्बेसडर, तो राजदूत। इस तरीके से आपको वर्कशीट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, चलो मैं ये शेयर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, एनी अदर डाउट? No, ma'am. नो मैम। मैम 9 क्वेश्चन ही थे ना? हाँ, बस 9 क्वेश्चंस। शिवाली मैम, सौम्य बेटा, यू लीव द क्लास। यस मैम। आपको होस्ट बना देती हूँ मैं, शिवाली मैम। ओके मैम,